Assets are the properties owned by an enterprise. They are the economic resources of the business. In other words, anything which will enable the business or firm to get an economic benefit in the future is an asset. For example, land, building, computer, machinery, furniture, etc. All these are an example of assets. असेट्स मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ जो बिजनेस को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट कराता हो वह असेट्स है. एग्जाम्पल मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, etc. ये सभी चीज़ असेट्स हैं. इन अदर वर्ड्स वी कैन से assets are the properties owned by a business. An asset is anything you own in your business. They are the things in your office like your computer, your scanner, your vehicle, camera, etc. Everything you own is considered an asset of the business. Assets are used to generate revenue and purchase other assets. For example, when you purchase a new computer, you use one asset, that is cash, in exchange for another asset, that is computer. It means एक संपत्ति, जो कैश आपका एक असेट है, संपत्ति है, वो कम होता है और उसी समय एक दूसरा संपत्ति, अनदर असेट, कंप्यूटर, वो आपके पास आता है. दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ परचेज ऑफ असेट फॉर अनदर असेट. Now, the classification of assets. Assets can be classified broadly into three categories. That is, number 1, non-current assets. Number 2, current assets. And number 3, that is fictitious assets. So now we are going to study in detail about all these three classification of an assets. Number 1, that is non-current assets. Non-current assets are those assets which are held by a business enterprise not with the purpose to resell but are held either as investment or to facilitate business operations. It means वैसे संपत्ति जो बिजनेस के द्वारा ओन किए जाते हैं लेकिन जिसका रीसेल तुरंत नहीं होता है, जिसका मोटिव बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है, फैसिलिटेट करता है बिजनेस को टू अर्न प्रॉफिट, वैसे असेट्स को हम नॉन करेंट असेट्स बोलते हैं. फर्दर, नॉन करेंट असेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स. नंबर 1, टैंजिबल असेट्स एंड सेकंड, intangible assets. Tangible assets are those assets which have physical existence, that is, they can be seen and touched. Examples of tangible assets are land, building, machinery, furniture, computer, etc. Tangible assets वैसे assets को कहते हैं जिसे हम छू सकते हैं, जिसका कोई physical existence होता है, जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. वैसे assets को हम tangible assets कहते हैं. Intangible assets. Intangible assets are those assets which do not have physical existence. It means they cannot be seen and touched. For example, intangible assets are patents, goodwill, trademarks, computer software, etc. All these are an example of intangible assets. इंटेंजिबल असेट्स वैसे असेट्स को हम बोलते हैं जिसे हम देख नहीं सकते हैं, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जिसे हम टच नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब एक इंटेंजिबल असेट्स होता है. इवन द सॉफ्टवेयर, जो आज की डेट में जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, वो भी क्या है, एक इंटेंजिबल असेट्स है. करंट असेट्स. Current assets are those assets which are held by an enterprise with the purpose of converting them into cash within a short period, that is 1 year. For example, goods are purchased with a purpose to resell and earn profit. Cash and bank balance are also example of current assets. Current assets वैसे assets को बोलते हैं जो जिसका पर्पस होता है उसको ईजिली कैश में कन्वर्ट कर लेना है, जिसका पर्पस होता है रीसेल करके प्रॉफिट अर्न करना. फॉर एग्जांपल,
परचेज ऑफ गुड्स, कोई बिजनेसमैन या कोई दुकानदार कोई सामान परचेज करता है और उसका मोटो उसको परचेज करने के लिए है कि वो उसे बेच करके उससे प्रॉफिट अर्न करेगा, देन दैट वेरी गुड्स इज टर्म एज करंट असेट्स. सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. सपोज अ मैकेनिक जिसका एक गराज है, वो एक कार अपने पर्सनल यूज़ के लिए परचेज करता है, वो एक कार अपने पर्सनल यूज़ के लिए परचेज करता है, देन दैट इज़ एन असेट. तो वो कौन सा असेट होगा? वो उसके लिए नॉन करेंट असेट्स होगा, और यू कैन से दैट वो उसके लिए फिक्स असेट्स होगा. क्यों? बिकॉज वो उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसने परचेज किया है, उसको वो यूज़ करेगा अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उसको वो बेच करके तुरंत उससे प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसने नहीं परचेज किया है. ऑन द अदर हैंड, सेम गैराज वाला अगर कोई दूसरा गाड़ी परचेज करता है, अनदर व्हीकल वो परचेज करता है, बट उसका मोटो, उसका जो उद्देश्य है ये परचेज करने के लिए, दैट इज़ उसको तुरंत रीसेल करके, उसे तुरंत बेच करके उससे प्रॉफिट अर्न करना है. देन ये जो नया वाला गाड़ी उसने जो परचेज किया, यू कैन से कार बी, दैट इज टर्म एज करेंट असेट्स. सो बेसिकली हम करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स में अगर हमको डिस्टिंगाइज करना हो तो हम डिस्टिंगाइज कर सकते हैं. नॉन करंट असेट्स वैसे असेट्स जो हमारे पास, जो हमारे बिजनेस में फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रहते हैं, उसे हम बोलते हैं नॉन करंट असेट्स, और यू कैन सी इट एज अ फिक्स्ड असेट्स. ऑन द अदर हैंड, करंट असेट्स वैसे असेट्स को हम बोलेंगे जिसका मोटो होता है कि हम वो असेट्स अक्वायर करें और उसे तुरंत हम सोल्ड आउट करके, बेच करके प्रॉफिट अर्न करें. फॉर एग्जाम्पल एक और हमने दिया, दैट इज कैश एंड बैंक बैलेंस. वो भी हमारा क्या है? नॉन करेंट असेट्स है, बिकॉज वो इजिली कैश अवेलेबल है, जब भी हम चाहे उसको कैश इन करके हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं उस कैश को यूज़ करके. सो करेंट असेट्स एंड नॉन करेंट असेट्स, ये जो क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम. fictitious assets are those assets which are neither tangible assets nor intangible assets. They are losses not written off in the year in which they are incurred, but in more than one accounting period. It means these are the assets which cannot be realized in cash, or no further benefit can be derived from these assets. Such assets include debit balance of profit and loss account and the expenditure not yet written off, such as advertisement suspense, advertisement expenses, etc. These assets are not really assets but are shown on the asset side only for the purpose of transferring them to profit and loss account gradually over a period of time. For example, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे एक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है. एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस किसी कंपनी ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी बिजनेस ने एडवर्टीजमेंट पर खर्च किया. सपोज करते हैं कि किसी कंपनी ने 50,000 रुपये एक एडवर्टीजमेंट पे खर्च किया, जिसका बेनिफिट उसको आने वाले नेक्स्ट 5 साल में उसको बेनिफिट मिल रहा है. तो उसने खर्च वो जो 50,000 है वो किसी एक फिनेंशियल ईयर में किया, लेकिन उसका बेनिफिट उसको मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में, मोर देन वन फिनेंशियल ईयर में उसको मिलेगा. सो दैट्स वाई वो हर साल सपोज करते हैं 5 साल की बात है, तो हम हर साल 10-10 हज़ार रुपये को एज अ एक्सपेंस, एज अ लॉस दिखाएंगे. सो ये है हमारा एक फिक्टिशियस असेट्स, जिसे हम नॉमिनल असेट्स भी बोलते हैं. Liabilities mean amount owed, that is payable by the business. Liability towards the owners of the business is termed as internal liability. On the other hand, liability towards the outsiders, that is other than the owners, is termed as external liability. Liabilities means दायित्व, वो पैसा जो बिजनेस को लौटाना है, देना है. इट मीन्स लायबिलिटीज मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिटर्न, दैट इज लायबिलिटीज. इट मीन्स जब बिजनेस कोई ट्रांजेक्शन करता है, जो हमने फर्स्ट टर्म देखा था अकाउंटिंग का, दैट इज द बिजनेस ट्रांजेक्शन. बिजनेस ट्रांजेक्शन में हमने 2 ट्रांजेक्शन देखे, दैट इज कैश ट्रांजेक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन. सो व्हेन बिजनेस मेक क्रेडिट ट्रांजेक्शन, इट मीन्स बिजनेस ने उधार कोई वस्तु खरीदा, सो वो जो अमाउंट है उसे एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद पे ऑफ करना है, दैट इज नोन एज लायबिलिटीज. अनदर एग्जांपल लेते हैं, जैसे बिजनेस ने
किसी से कोई वस्तु उधार लेकर के अपने काम को किया, अपने काम को फैसिलिटेट किया, वर्क किया, एंड देन आफ्टर वो उस पे उसका पोजीशन नहीं है, उस पे उसका मालिकाना हक नहीं है। लायबिलिटीज़ पे बिजनेस का मालिकाना हक नहीं होता है, वो उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो उसके ऊपर एक जवाबदेही होता है, जिसे बिजनेस को वापस करना है, लौटाना है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे। सो लायबिलिटीज को शॉर्ट में हम बोल सकते हैं ये क्या है, एक प्रकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे बिजनेस के ऊपर। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, पहला इंटरनल लायबिलिटीज, आंतरिक, एंड सेकेंड एक्सटर्नल लायबिलिटी मीन्स बाहरी लोगों के लिए। इंटरनल लायबिलिटीज मीन्स जब लायबिलिटी टुवार्ड्स द ओनर है, जो ओनर को पे ऑफ करना है। इट मीन्स एक बिजनेसमैन जब बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, रुपीस इन्वेस्ट करता है, तो उसको एक मोटो है, एक मोटिव है वो पैसा इन्वेस्ट करने का, दैट इज टू अर्न प्रॉफिट। सो वेन एवर बिजनेस को प्रॉफिट होता है, तो ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बिजनेस का लायबिलिटी है कि वो बिजनेसमैन को क्या करे, प्रॉफिट जो हुआ है वो उसे लौटाए। सो दिस इज टर्म एज अ इंटरनल लायबिलिटी। इट मीन्स लायबिलिटी टुवार्ड्स द ओनर। जो लायबिलिटी टुवार्ड्स द ओनर होते हैं, जो पार्टनर्स के प्रति होते हैं, उन्हें हम इंटरनल लायबिलिटीज कहते हैं। ऑन द अदर हैंड सेकेंड लायबिलिटी होगा, दैट इज एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज मीन्स वैसे लायबिलिटीज जो अदर दैन ओनर्स हैं, वैसे लायबिलिटीज को हम एक्सटर्नल लायबिलिटी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा कि बिजनेस किसी बाहरी से उधार पे वस्तु खरीद रहा है, सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटीज। वो उसे पे ऑफ करना है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद। इसका हम एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं। बिजनेस ने बैंक से लोन लिया, सो लोन जो बिजनेस ने बैंक से लिया, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटी। क्यों? बिकॉज वो लोन उसे एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद पे ऑफ करना है। सो दैट इज एन ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटी, यानी कि उधार पे वस्तु खरीदे, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटी। बैंक से लोन लिया बिजनेस ने, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटी। या क्रेडिट जो ट्रांजेक्शन हमने किया, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटी। सो बेसिकली अगर हम कैटेगराइज करें तो हम लायबिलिटीज को हम दो भाग में कर सकते हैं, दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल। नाउ फर्दर हम इस क्लासिफिकेशन को आगे एक्सटेंड करते हैं। सो फर्दर लायबिलिटीज को हम दो भाग में और डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, दैट इज नॉन करेंट लायबिलिटीज। अगेन सेम कॉन्सेप्ट आया जो हमने इससे पहले नॉन करेंट असेट्स देखा था, लाइकवाइज वैसे ही ये हमारा नॉन करेंट लायबिलिटीज है। तो नॉन करेंट लायबिलिटीज और सेकंड होगा दैट इज करेंट लायबिलिटीज। तो अब हम डिटेल में देखते हैं व्हाट इज नॉन करेंट लायबिलिटीज, उसके क्या एग्जांपल्स होंगे, एंड करेंट लायबिलिटीज, उसके डेफिनेशन एंड उसके एग्जांपल। सो लेट्स स्टार्ट। नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी इज दैट लायबिलिटी which is payable after a period of more than a year from the end of the accounting period. Examples of non-current liability are long-term loans, debentures, etc. तो नॉन करेंट लायबिलिटीज वैसे लायबिलिटी को हम बोलेंगे जिसका रीपेमेंट, जिसको रिपे करना है बिजनेस को फॉर मोर देन अ ईयर, जो एक साल से अधिक समय के बाद उसे पे ऑफ करना है। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस ने बैंक से लोन लिया, और जो लोन लिया उसका जो टर्म ऑफ रिपेमेंट है वो है कि वो उसे 3 साल, 4 साल या 5 साल के बाद पूरे अमाउंट को लौटाना है। सो जो लोन का अमाउंट है, उस लोन के अमाउंट को अगले 5 सालों तक लौटाना है। सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन करेंट लायबिलिटी। सो यहाँ भी टाइम फैक्टर है कि जो 1 साल से अधिक का जो ड्यूरेशन होगा, टाइम पीरियड होगा हमें पे ऑफ करने के लिए, दैट इज टर्म एज नॉन करेंट लायबिलिटी। नाउ करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी इज दैट लायबिलिटी विच इज पेएबल विद इन 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एटसेट्रा। वैसे लायबिलिटी जो हमें विद इन 12 months के अंदर हमें पे ऑफ कर देने हैं, वैसे लायबिलिटी को हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बोलते हैं या उसे हम करेंट लायबिलिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस से या दूसरे किसी व्यक्ति से उधार पे कोई वस्तु परचेस करता है, तो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम का उन लोगों के बीच में एक डील होगा, कॉन्ट्रैक्ट टाइप का होगा या अंडरस्टैंडिंग होगा
कि जो भी वस्तु हम परचेस कर रहे हैं, मीन्स जो बिजनेस है जो अक्वायर कर रहा है अनदर बिजनेस से, वो इस चीज़ का सामने वाले को एक जवाबदेही देगा, अपना एश्योरेंस देगा कि इस अमाउंट को हम एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, दैट यू कैन से 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने या जो भी हो, विद इन 12 मंथ्स के विद इन हम उसे पे ऑफ कर देंगे। तो वैसे लायबिलिटी को हम करेंट लायबिलिटी बोलते हैं। ओके।